Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, as you know, we have started 20 days 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So, guys, today is day 8 and today we are discussing the important questions of chapter amines. Okay, it's the function group test and naming reaction we have already done. And yes, today we are doing some important question from this chapter. Let's start the questions. The very first is the very important question. Account for although amino group is ortho para directing in aromatic electrophilic substitution reaction, we all know this. Okay, aniline on treatment on nitrogen gives substantial amount of meta nitroaniline. The question is, we have aniline NH2 and the lone pair of on nitrogen will make the ring activating at ortho and para position. Okay, here NH2 group, positive charge, double bond and negative charge. Okay, next what will happen, next resonating structure, this bond will shift to here and this bond will shift to this carbon. The next resonating structure is negative charge over here, double bond over here, and yes. Okay, I'm drawing this much only. From here you can easily visualize when the electrophile will attack or approach to this ring, it will go to the side where more electron density present. So here ortho position and para position is having the more electron density, so electrophile will attack on ortho and para position. So yes, amine group or amino group is ortho para directing. This is very true information as we can see through the resonance. But one more statement is given here, aniline on treatment with a substantial amount of meta nitrobenzene. What it does mean, it means if we are reacting this aniline to undergo nitration. Okay, nitration is in the presence of HNO3 and concentrated sulfuric acid. What will happen? First of all, it will form para nitrobenzene. Okay, in the nitration you all know NO2 nitronium ion, it will act as a electrophile. What is this electrophile? Nitronium ion, NO2 positive. Nitronium ion will act as electrophile. This nitronium ion will going to attack on the ortho position and yes, para position. So we already know two products we will have, one at para nitroaniline, okay, and the second one is ortho nitroaniline. This product we are definitely get from nitration. But apart from these products, one more product we will have, which is meta nitroaniline. It means the nitro group will attach to meta position also. How it's possible? How nitro group will attach to meta position? Actually, this happened because this amine group, when reacted with the strongly acidic medium, this is acidic medium, HNO3 and concentrated H2SO4 will provide the acidic medium. So this aniline in the presence of acidic medium will form anilinium ion. Aniline is act as base. We all know aniline is act as base. So this will act as base. Aniline will act as base. Aniline is basic in nature. And nitric acid, sulfuric acid, these are acids. So when base react with acid, it will form salt. So aniline will form a salt which is anilinium ion actually. This will form anilinium ion. Anilinium ion, NH3 positive. This is what? This is anilinium ion. Okay.
Now this anilinium ion is meta directing. For example, aniline amine group over the benzene ring is orthopara directing. This is orthopara directing. Okay, while this group anilinium group over benzene ring which form anilinium ion is meta directing. This is meta directing. Meta directing, that's why it will form meta product also. Now we get to know ortho product will form, para product will form, and meta product also formed, because when aniline get reacted with or in the acidic medium, or we can say strongly acidic medium, aniline is protonated. Protonated means the proton from the acidic medium will get combined to the amine group, this group, and form anilinium ion. And now this anilinium ion is meta directing. Okay, anilinium ion is meta directing. So we get to know that we will have para product, we will have ortho product, and we will have meta product. In fact, you will amazed to know that the meta product we will have is 47%, and the para product we will have, para nitroaniline, is 51%, and the ortho product we will have is only 2%. So maximum we will have para product, then meta product, and very least is ortho product. So what is the reason that we will have very least ortho product? Actually you can see in the ortho product, I must highlight this one. This is the ortho product. Okay, so here you can see there is a kind of steric hindrance. Both the group are very close to this nitro group, this NO2 group, and this amine group. Both are very close to this. Both groups are very close. Okay, so there is somewhat steric hindrance. So this product will form very least only 2%. Okay, I hope this question is very clear to all of you, and it is very important for all of you. Okay, next question, according to examination point of view, this is PYQ. Okay, next question is Gabriel thalamide synthesis is preferred for synthesis primary amines. Okay, so there are various methods for the synthesis of primary amine, but we prefer Gabriel thalamide synthesis. Why? Because the product we will get from the Gabriel thalamide synthesis is very pure. Okay, the primary amine, here the product we will get what? We will get primary amine. You know the Gabriel thalamide synthesis reaction, we have covered it in the reaction, important reactions. Okay, so what happened here? The thalamide when reacted with the base KOH, it will form salt. Okay, and when it react with alkyl halide, okay, CH3 suppose Cl, it will form an alkyl thalamide. Again it reacted with the base and we will get primary amine which is very pure. For example, there is no formation of secondary or tertiary amine or any kind of mixture. यहाँ किसी भी तरीके का मिक्सचर नहीं बनेगा, तो the product you will get is only primary amine and it is very pure. That's why we prefer Gabriel thalamide synthesis over other reaction. Fine. Hope this is very clear to you all. Next question is, why cannot aromatic primary amines be prepared by Gabriel thalamide synthesis? Okay, very nice question and very important also. Okay, what they are saying, let's come back to the previous slide. Here you can see we have thalamide which is reacted with the KOH and forms salt. This is what? This is salt. Now the question asked to us is, the alkyl halide we are taking over here is only aliphatic alkyl halide. We can't take here aromatic alkyl. For example, if we are doing this reaction with chlorobenzene, this reaction and alkyl thalamide, this will not undergo. This reaction will not take place. Why this will not take place? Because in this reaction you can easily visualize this salt. Okay, let me erase these kind of things. Okay, the salt here is K positive ion, and complete this one is this one, N negative, and this one. This is negatively charged ion. Okay, N negative. Okay, आपको यहाँ दिख रहा होगा ना K positive के साथ. और if we are taking the aromatic
alkyl halide. Okay, so here the ring is, from here the ring which is going to attack on the, this is the Cl group and this is the ring. The ring which is going to attach, the R group will going to attach over here ना, is also negatively charged ring, है ना. यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला एक तरह से, ये भी नेगेटिवली चार्ज रिंग है, एरोमेटिक रिंग हैविंग लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी नेगेटिव चार्ज सिस्टम है. तो एक नेगेटिव चार्ज रिंग एक नेगेटिव चार्ज सिस्टम पे कैसे अटैक कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है. ऑफ कोर्स यहाँ से K के साथ ही X निकल जाएगा, KX निकल जाएगा. अब ये जो R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप N के साथ कंबाइन होगा, क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इफ वी see over the reaction, the thalamide over here, C double bond O, C double bond O and NH. Okay, we have the thalamide. When this react with the KOH, of course this will form a salt. Okay, C double bond O, C double bond O, N and K. N negative charge, K positive charge, this one. And if we are reacting this with aromatic system, okay, if we are reacting this with aromatic system, only then we are getting only then we will have the product of aromatic primary amines. Okay, अगर हम यहाँ पे aromatic system लेंगे तभी तो aromatic primary amine मिलेगा. बट क्या होता है कि ये जो aromatic system है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, और जिस पर ये अटैक करने वाला है ये पूरा सिस्टम भी नेगेटिवली चार्ज है. K के साथ Cl चला जाएगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज सिस्टम पे अटैक नहीं करेगा, तो ये क्या होएगी, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी. इसलिए हमें एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो है वो नहीं मिलता है. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट इज एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती, ऐसा क्यों है? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है. वेरी बेसिक. फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन द बेंजीन, अल्काइल हैलाइड, okay, in the presence of aluminium chloride or FeCl3 also we can take. So what will happen over there, the electrophile will going to attach over the ring. Okay, we will get here toluene. हमें यहाँ क्या मिलता है, हमें यहाँ टोलुइन मिलता है. ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम देखते हैं. बट अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ ले लें एनिलीन, याद है ना आपको ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. अगर हम यहाँ एनिलीन ले लें, यहाँ पे हम वही अल्काइल हैलाइड ले लें, यहाँ पे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लें AlCl3. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो इसके साथ, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड किसकी तरह एक्ट करता है, इट इज़ एक्ट एज अ लुइस एसिड. ये लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके, लुइस एसिड्स क्या होता है, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, ये लुइस एसिड्स होते हैं. और अमीन्स का आपको पता है ना, नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज अ लुइस बेस. ये किसकी तरह एक्ट करता है, लुइस बेस. तो लुइस बेस ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड को दे देगा. और ये क्या बना लेगा, ये यहाँ पे बना लेगा एक सोल्ट. ये क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा सोल्ट NH2 पॉजिटिव विद AlCl3 नेगेटिव. तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाता है सोल्ट. और ये सोल्ट बन जाता है, इस वजह से आगे रिएक्शन क्या होती है, कैरी आउट नहीं होती, नो रिएक्शन. ठीक है, तो अगर हम सिंपल रिंग की बात करें या सिंपल हम क्लोरोबेंजीन की बात करें, और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन भी होता है, अगर क्लोरोबेंजीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है तो यहाँ हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल नहीं है. बट इन केस ऑफ अमीन्स या इन केस ऑफ एनिलीन्स व्हाट हैपन, नाइट्रोजन इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर over here, and these 2 electron pair from, because of these 2 electron pair, this is act as a Lewis base, and the aluminum chloride is a Lewis acid which can accept the electron pair, so they will form a salt. इस तरीके का एक salt बन जाता है, और इसकी वजह से ये आगे रिएक्शन कैरी आउट नहीं होती.
इसलिए एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ aromatic amines are more stable than those of the aliphatic amines. Yes, this is very important and sometimes it is asked in the write complete reactions. Okay, first you have given the aromatic amines and next you have given the aliphatic amines. So how you will answer this question? The diazonium salt of aromatic amine. aromatic amine का diazonium salt आपको पता ना कैसे होता है, ये diazonium salt N triple bond NCl। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? ये इस तरीके से क्या होता है, दिस इज है ना। ओके, ये क्या है, ये है एरोमेटिक अमीन का डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है डाइजोनियम सॉल्ट ऑफ एलिफेटिक अमीन। ये कैसे बना है डाइजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक अमीन का? ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि जब हमने क्या लिया, एनिलीन लिया है, ये मैं आपको बता देती हूँ रिएक्शन। एनिलीन की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, NaNO2 प्लस HCl अंडर टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया। ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है एरोमेटिक। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब इस रिंग की बजाय हमारे पास क्या हो, R ग्रुप क्या हो, CH3, ऐसे हो सकता है ना। आप क्या ले लें, CH3 ले लें, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से हो तो वो एलिफेटिक है। कैसे बना होएगा, डेफिनेटली यहाँ पे CH3NH2 रहा होगा, सेम कंडीशन NaNO2 रही होंगी, HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सेम कंडीशंस रहेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये है हमारे पास एरोमेटिक और ये हमारे पास क्या है, एलिफेटिक। अब एरोमेटिक हमारे पास स्टेबल है, बिल्कुल सही बात है, जबकि जो हमारे पास एलिफेटिक होता है, अच्छा हाँ, वन मोर पर मोर, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ना, नॉट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एक और चीज़। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो एरोमेटिक हमें बनेगा ना, ये एक्चुअल में ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता। ये कैसा होता है, ये होता है अनस्टेबल, जबकि यहाँ पे क्या है, ये चीज़ स्टेबल है, ये यही रहेगा, आगे नहीं बनेगा अगर रिएक्शन नहीं करेंगे। जबकि अनस्टेबल है, ये चीज़ हमें मिलती नहीं है एज अ प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट रहता है और इमीडिएटली ये इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है इसकी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे एल्कोहल मिलता है प्लस नाइट्रोजन गैस N2 प्लस HCl, तो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे इन केस ऑफ एलिफेटिक। एरोमेटिक केस में हमें स्टेबल मिल जाएगा। अब ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है रेजोनेंस, ये बोन यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये वाला, ये यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट, ये फर्स्ट है सपोज, इसका मैं सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बना देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, यहाँ यहाँ मैं इसको रब कर देती हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज पहले ही था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन Cl। ठीक है, यहाँ लग दीजिए। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से फर्स्ट रेजोनेटिंग से सेकंड क्या होएगा, अब ये बॉन्ड वापस यहाँ मूव हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या होएगा, ये डबल बॉन्ड मूव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव हो जाएगा और ये वाला वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक में आप क्या लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ एरोमेटिक यहाँ क्या पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से होता है क्या, रेजोनेंस की वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो डिस्पर्स हो जाता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। और चार्ज एक जगह पे इकट्ठे रहने की बजाय अगर डिस्पर्स हो गया है तो वो सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम होता है ज़्यादा स्टेबल। दैट्स वाई एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमीन्स। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एरोमेटिक अमीन्स में डाइजोनियम सॉल्ट ही बन जाता है एंड स्टेबल होता है। एरोमेटिक में है ना, एरोमेटिक में। एलिफेटिक के केस में ये इंटरमीडिएट बनता है बट इमीडिएटली हाइड्रोलाइज होकर के हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एल्कोहल।
ठीक है। अब ऐसा क्यों है, एरोमेटिक के केस में क्या होती है रेजोनेंस, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिस्पर्स होता है, दैट्स वाई इट इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक अमीन्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज नो मोर क्वेश्चन, these are 5 important questions from this chapter. Next is one important topic, we should cover it up for you all, and this is the diazonium salt, their reactions of diazonium salt. So there are various reactions for the diazonium salt. For example, the very first is Sandmeyer reactions. First reaction, second reaction and third reaction, all three are Sandmeyer reaction. तो अगर हमारे पास डायजोनियम सोल्ट है, उसको हम कॉपर साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेंजीन नाइट्राइल, है ना, बेंजीन नाइट्राइल और साइनो बेंजीन, ये भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको कॉपर क्लोराइड HCl के साथ करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसे कॉपर ब्रोमाइड HBr के साथ करें तो हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों क्या हैं, तीनों रिएक्शंस हैं सैंडमेयर रिएक्शंस। ओके, फोर्थ है, ये एक्चुअल कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट लेने वाले हैं फोर्थ में, तो डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाएंगे तो हमें मिलेगा आइडोबेंजीन। क्या मिलेगा हमें, आइडोबेंजीन, ठीक है। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं हाइड्रोजन, इसको एक्चुअल में होता है फ्लोरोबोरिक एसिड, है ना, इसको बोलते हैं हम फ्लोरोबोरिक एसिड, ध्यान रखना इसको, फ्लोरो FLURO फ्लोरोबोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है फ्लोरोबेंजीन, तो हमें मिलता है फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, अब ये चीज़ ध्यान रखना, डायजोनियम सॉल्ट को जब हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं तो हीट करने पे, ठीक है, देखिए हीट लिखा हुआ है, हीट करने पे हमें मिल रहा है फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। जबकि एक और रिएक्शन होती है, डायजोनियम सॉल्ट को ही हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाते हैं पहले, तो हमें इंटरमीडिएट मिलता है। बट अगर उसके बाद, एक्चुअल में ना यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, एक इंटरमीडिएट ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे पहले इंटरमीडिएट बनेगा ये फिफ्थ रिएक्शन में। अगर हम फिफ्थ रिएक्शन की बात करें, वो इंटरमीडिएट कुछ इस तरह बनता है, N2BF4 नेगेटिव, ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है, ये है इंटरमीडिएट। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, ये हम HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाई, ये है हमारा इंटरमीडिएट, इसके आगे हम करवाते हैं हीट तो हमें मिलता है फ्लोरोबोरिक एसिड। बट अगर इसी को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसी को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ, कॉपर के साथ हीट करते हैं, तब उस केस में हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ रिएक्शन नहीं गिवन है तो आप ये नोट कर सकते हैं, आपकी NCERT की रिएक्शन है, तब हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। आई होप, मैं रिपीट करती हूँ फिर से ये वाली रिएक्शन। जब हमने डायजोनियम सॉल्ट को HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाया तो एक हमें मिला फ्लोरोबेंजीन, उसको हम क्या करेंगे, पहले हमें मिलेगा इंटरमीडिएट विच इज़ सॉल्ट, उसको हम हीट करवाएंगे, हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। जबकि अगर हम उस इंटरमीडिएट सॉल्ट को सोडियम नाइट्राइड के प्रेजेंस में NaNO2 की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे तो हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा जो आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन विद एसिड और सिंपल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा फिनोल। और अगर हम डायजोनियम सॉल्ट को H3PO2, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, इसको बोला जाता है H3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसके साथ करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा सिंपल बेंजीन, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो या फिर एक और चीज़ आप यहाँ नोट कर सकते हैं, इथेनॉल, या फिर क्या हो, इथेनॉल हो, इथेनॉल के साथ करवाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, सिंपल बेंजीन मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई है, तो ये हमें रिएक्शन है, 6 रिएक्शन है टोटल आपकी NCERT की, आपको जो ध्यान रखना। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये रिएक्शंस आप देख लेना एक बार, देखिए आ जाता है कन्वर्जन, डायजोनियम सॉल्ट टू आपको बेंजीन बनाना, आपको पता होना चाहिए, उसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ करेंगे, इथेनॉल के साथ करेंगे तो रिंग बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम HBF4 के साथ करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बन सकता है सिंपल हीटिंग से, बट अगर उसे हम सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में हीट करें तो नाइट्रोबेंजीन बन सकता है।
सैंड में रिएक्शन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ आइडोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। साथ में जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं है, आपकी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चली होंगी फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।